So this is our digital data transmission process, transmission as well as receiving. So ये हमारे steps follow होते हैं whenever we are transmitting any sort of digital data, right? चाहे आप computers, microcontrollers, जैसे भी आप transmit कर रहे हैं digitally, these steps, these blocks have to be used. So you can see the first block, this one, that is your input source, input frequency और input source. जो भी हमारा raw message data है, this is what we need to transfer. Now, this data obviously is not transmitted directly. ठीक है, there are many steps in between. और हम लोग ये सारे steps पढ़ेंगे भी आपके कोर्स में throughout. So first step is your source encoder. So जो भी आपका input source है, firstly it is encoded. I hope everyone remembers the process of encoding and decoding. ये आपका basic digital का कॉन्सेप्ट है दैट कोई भी हमारे पास बिट्स हो सकते हैं. मैं 3 to 8 एनकोडिंग यूज कर सकता हूँ और आई कैन यूज 4 to 16 एनकोडिंग हाउएवर आई वांट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मे बी डेसिमल टू बीसीटी एनकोडर, कोई भी अपनी एनकोडिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स अभी पढ़ेंगे भी इसी लेक्चर में. सो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट कि आपका जो भी डेटा है, सपोज मुझे 0010 भेजना है, तो मैं इसको एज इट इज नहीं भेजूंगा, आई विल एनकोड इट and then send it. So encoding में बड़ा बने छोटा बने जैसे बने, that is a different issue, but ये as it is नहीं जाएगा. ठीक है, you should remember this. Then after source encoding we have another encoder, that is the channel encoder. तो जो भी हमारे पास encoded data मिला उसको further हमने एक channel encoder के थ्रू encode किया, right? So after encoding it again through the channel encoder, then finally it is modulated. ठीक है, तो हमारे पास एक channel encoder और आ गया, यानी एक हमारे पास, मैं यहाँ पे CENC लिख देता हूँ. So you see the different stages through which your data is going through before actually getting transmitted. Basic message, then source encoding, channel encoding, and then finally modulation. Based on the type of modulation, obviously क्योंकि हमारा यहाँ पर सिग्नल डिजिटल है, जो मैसेज सिग्नल है, इनपुट सिग्नल इज डिजिटल, सो ऑब्वियसली दिस इज अ डिजिटल कम्युनिकेशन. सो हम लोग बेस्ड ऑन जो भी हमें यूज करना है, वी कैन यूज FSK, ASK, BPSK, जो भी है, QPSK, DPSK, व्हाटएवर टेक्निक वी वांट टू यूज फॉर मॉड्यूलेशन वी विल यूज. एंड आपका जो कैरियर रहेगा दैट विल ऑलवेज रिमेन एनालॉग, ये आपको ध्यान रखना है. सो मॉड्यूलेशन करने के बाद जो फाइनली यहाँ पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया, राइट, modulated signal, that is transmitted through the electrical communication channel. जो भी channel है, whether it is wire, whether it is wireless, कैसे भी आप communication कर रहे हैं, so that is the finally modulated signal that is transmitted. So ये steps आपको ध्यान रखनी है, and they are very simple, not at all tough. Message, source encoding, channel encoding and modulation. एक पाथ अगर आपको याद हो गया, so receiver path में, destination path में, it is exactly the opposite. Obviously जो आपने basic message के साथ छेड़छानी यहाँ पर की है पूरी, जो भी इसको किया है आपने convert, you will have to again do the reverse process obviously. वरना जो मेरा source और destination है, इनके बीच में जो communication होना है, obviously इसको तो जो message भेज रहा है source as it is destination पे पहुंचना चाहिए, right? लेकिन मैंने बीच में काफी सारे प्रोसेसेस किए, तो वो प्रोसेसेस मुझे फिर से रिवर्स करने पड़ेंगे सो दैट एक्चुअल मैसेज डेस्टिनेशन के पास पहुंचे. ऑलराइट, सो इफ यू सी हियर you have all those processes that we did during the transmission in reverse phase. मॉड्यूलेशन यहाँ पे किया, यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर आ गया. डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको डीमॉड्यूलेट करेगा. देन यहां पर जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आया दैट विल बी सेंट थ्रू अ चैनल डिकोडर, क्योंकि हमने यहां पर देखो एनकोडिंग प्रोसेस किया था. तो अब ये डिकोड होगा,
जो भी हमने ये वाला एनकोडिंग की थी, that will be decoded to again receive the decoded signal. अब अभी भी it is not in its original form because हमने ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है उसको हमने सोर्स एनकोडिंग की थी. सो ये जो चैनल डिकोडेड सिग्नल है इसको हम लोग फाइनली फिर से सोर्स डिकोडर में डालेंगे, जिससे आपकी सोर्स डिकोडिंग भी हो जाए. जैसे हमने एनकोडिंग की थी यहाँ पर, वैसे ही आपकी डिकोडिंग हो जाएगी. सो फाइनली अब यहाँ पर सोर्स डिकोडिंग करके आपका मैसेज सिग्नल ऑब्टेन हुआ जो हमने भेजा था. सो दैट इज देन arrived at the destination. So this is the entire process of digital data transmission, right? So हम लोगों ने इसमें बेसिक्स सारा कवर कर लिया है. एक बेसिक पॉइंट और है इसमें जो मैं आपको कवर नहीं कर रहा हूं because it is very simple, you can do it yourself, but I will mention it to you. Advantages ये कभी कभार आ जाता है, that is why I am telling it. Advantages and disadvantages, right? So in your digital communication introduction and principles of digital communication topic, ये दो पॉइंट्स भी आप लोग प्लीज कर लीजिएगा. दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. दिस यू कैन डू योरसेल्फ. इसमें सिंपल आपके पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. दीस कैन कम एज 2 मार्क्स क्वेश्चन या आपके बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट आ सकता है.